I'm Dr. Rajpal, and in this video, I'm going to discuss a poem by Alexander Pope. The title of the poem is Know Then Thyself. So, Know Then Thyself is one of the most commonly prescribed poems in Indian colleges and universities. So, in this video, I would be giving you a critical analysis of the poem along with vocabulary and uh, defining neoclassical age of which this poem is a literary product. And at last, I would be discussing some salient features of neoclassical literature. So सबसे पहले इस वीडियो में नो देन दाई सेल्फ जो एक कविता है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है, इसका मैं आपसे क्लोज क्रिटिकल एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। वोकैबुलरी पोर्शन को सबसे पहले हम लेंगे, उसके बाद में पोएम के जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में वी वुड बी गोइंग लाइन टू लाइन टेकिंग अ क्लोज क्रिटिकल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। और फिर जो स्टूडेंट्स मास्टर्स लेवल पे अलेक्जेंडर पोप को पढ़ रहे हैं या जिनका इंग्लिश लिटरेचर में दिलचस्पी है या जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो नियोक्लासिकल एज और नियोक्लासिकल एज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इस वीडियो के अंत में दी हुई हैं। अंत में मैं उनसे वीडियो के अंत में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो वो भी आप देखें। सो एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट्स यू कैन सी द सिलेक्टिव पोर्शन ऑफ द वीडियो एज वेल। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने की संभावना है क्योंकि इसमें वोकैबुलरी सेक्शन भी है, नियोक्लासिकल एज भी है और नियोक्लासिकल एज की सेलिएंट फीचर्स भी हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद the vocabulary portion. I think that without understanding the words being used in any piece of writing, it's very difficult for one to understand it. बिना शब्दों की समझ के किसी भी piece of writing को समझना बड़ा मुश्किल होता है। So in order to enhance your linguistic competence, I'm sharing with you the vocabulary portion first. So the first word is presume and it means postulate, guess or believe. किसी चीज को anticipate करना, उसका पूर्वानुमान लगाना, postulate करना, उसके बारे में speculate करना। scan का मतलब examination और probe, किसी चीज का विश्लेषण करना। isthmus, a narrow strip of land with water on each side that joins two larger pieces of land. भूखंड के दो भागों को जोड़ने के लिए एक पतली भूमि की लाइन, एक लाइन स्वरूप एक भूमि जिसके दोनों तरफ पानी है और वो जो एक पगडंडी है वो दो भूखंडों को जोड़ती है, दैट इज isthmus. सो इन बिटवीननेस के सिंबल के रूप में isthmus वर्ड का इस्तेमाल इस पोएम में किया गया है। देन द वर्ड rude, इसका मतलब हो गया impolite, bad mannered. wise, clever, sagacious, prudent. skeptic, doubter, questioner, disbeliever. जो संकी होता है उसको हम skeptic बोलते हैं। stoic का मतलब होता है indifferent, tolerant and patient, जिसके पास में धैर्य है। तो skeptic का मतलब हम कह सकते हैं कि संकी, और stoic का मतलब saintly, एक साधु की तरह से। hang का मतलब होता है swing, to attach something or to be attached, किसी चीज पे किसी चीज को लटका देना या swing करना, that is hang. then the word deem का मतलब think, मानना, believe, estimate और consider, समझना। beast का मतलब होता है दैत्य, an animal, especially one that is large or dangerous. prefer का मतलब होता है किसी चीज को तरजीह देना, to like one thing or person better than other, दूसरे के मुकाबले किसी व्यक्ति या चीज को ज्यादा पसंद करना, that is prefer. For example, I would prefer reading poetry than fiction. So if somebody is somebody is fond of reading poetry,
more than fiction, so you can say I would prefer reading a poem instead of a piece of non-fiction or fiction. To make mistake, गलती करना, ignorance, obliviousness, unawareness, किसी चीज से आपकी अनभिज्ञता को ignorance कहते हैं. Chaos means disorder, confusion. Then the word abuse means the use of something in a way that is wrong or harmful, misuse. Prey, an animal, a bird, etc. that is haunted, killed and eaten by other, शिकार करना. Soul means only or single, एकमात्र. Error का मतलब mistake, गलती, blunder. Hurl, to throw something somebody violently in a particular direction. हरल का मतलब किसी एक चीज को या किसी एक व्यक्ति विशेष को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंक देना. ग्लोरी, मैग्निफिसेंस, ब्यूटी, किसी चीज का ग्लोरी का मतलब उसका उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान. जेस्ट, स्पूफ, प्रैंक और जोक, मजाक. रिडल, एनिग्मा, मिस्ट्री, पहेली. So these are the words, and now we enter the major points of this poem. ये इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण पार्ट है. इस पार्ट को अगर आप समझेंगे तो आपके लिए पोएम को समझना बेहद आसान होगा, and it will make everything crystal clear in your mind. The poem entitled "Know Then Thyself" is an extract taken from the first part of Alexander Pope's prominent work, and essay on man, epistle 2. अलेक्जेंडर पोप का एक प्रोमिनेंट वर्क एन एसे ऑन मैन है. उसमें 4 एपिस्टल हैं और उसके सेकंड एपिस्टल से ये पोएम ली गई है. उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसका एक अंश है, उसका एक हिस्सा है. नॉट इवन द एंटायर एपिस्टल टू एन एसे ऑन मैन. So the extract argues, through this extract, Alexander Pope argues that human beings should learn to look at themselves and try to learn about their own natures, powers, limitations and weaknesses. अलेक्जेंडर पोप का मानना है कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी प्रवृत्ति, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों को पहचाने, अपने आप को खुद को पहचाने. It is a plea to look inwards to gather knowledge about oneself. और एक प्रकार से ये कविता एक अपील है कि हम अपने खुद के गिरेबान में झांकें और अपने बारे में जानकारी अर्जित करें, जानकारी हासिल करें. One should not look to God for this self knowledge, since the proper study of mankind is man. One should not look to God for this self knowledge. और ये स्वयं के बारे में जो नॉलेज है, स्वयं के बारे में जो जानकारी है, स्वयं के बारे में जो ज्ञान है, इसको हासिल करने के लिए एक व्यक्ति को भगवान की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पोएट का मानना है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन. इट इज अ टेक्सुअल लाइन कि मानवता के लिए जो एक प्रॉपर अध्ययन है वो मानवता ही है, वो मैन ही है. द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन. अगर मानवता को बेस्ट वे में किसी का अध्ययन करना है तो वो मानव अपने आप का अध्ययन करे. The poem is also a fine example of the ideas, but the irony is this: man studies everything else but not himself. इंसान क्या करता है? बाकी सारी चीजों का अध्ययन करता है. साइंस का अध्ययन करता है और एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करता है, लॉ का अध्ययन करता है, हजार किस्म की जो नॉलेज सिस्टम्स हैं उन सभी का अध्ययन करता है, बट खुद के बारे में अध्ययन नहीं करता. So this is the one of the greatest ironies of human life. The poem is also a fine example of the ideas of individualism and scientific inquiry propagated by English Enlightenment. So ये कविता अंग्रेजी Enlightenment, जो English Enlightenment था, उसकी जो एक इंक्वायरी है, that is the best example, उसका एक उदाहरण है जिसके अंदर हम इंडिविजुअलिज्म को, व्यक्ति विशेष को, और साइंटिफिक इंक्वायरी जो कि इंग्लिश इनलाइटनमेंट के द्वारा प्रोपगेट की गई थी, उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है. Pope's principles for understanding man is the great
चेन ऑफ बीइंग। पोप के लिए मानवता को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, जिसके अंदर सारी चीजें, कि वेजिटेबल्स को कौन खाता है, फिर उसको कौन खाता है, फिर उसको कौन खाता है, और वो पूरा एक ग्रेट चेन ऑफ बीइंग जो जिसमें हायरार्कियल एग्जिस्टेंशियल हायरार्कीज हैं, वो इस कविता का सारांश है। विच ऑर्डर्स ऑल क्रिएशन अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, जिसके अंदर सभी का जो सोपान है, सभी की जो एक पोजीशन है, वो भगवान की इच्छा से होती है। Major points continued. The disorders which man sees in the universe are actually parts of some larger perfection which man's limited knowledge cannot pursue. एक व्यक्ति जो प्रकृति के अंदर डिसऑर्डर्स को देखता है, एक्चुअली वो एक लार्जर परफेक्शन का पार्ट है जो कि मानवीय ज्ञान से परे हैं, विच मैंस लिमिटेड नॉलेज कैन नॉट परस्यू। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य की जो एक लिमिटेड नॉलेज है, उसका एक सीमित ज्ञान है, उसके दायरे से बाहर हैं ये प्राकृतिक परफेक्शन की चीजें। मैंस प्राइडफुल स्पेकुलेशंस, एक इंसान की जो प्राइडफुल, गर्व से भरी हुई जो स्पेकुलेशंस हैं, उसके कयास और जो उसके स्पेकुलेशन मतलब उसकी जो गैस वर्क है, नॉट द एक्सटर्नल यूनिवर्स, वो बाहरी यूनिवर्स नहीं है, आर द कोज ऑफ दिस मिजरी। और मानवता की जो त्रासदी है वो इसी बात में है कि मानव अपने स्पेकुलेशंस को, इंसान अपने स्पेकुलेशंस को एक प्राइडफुल प्रोडक्ट मानता है अपनी नॉलेज का, अपनी इंक्वायरिंग नेचर का और अपने खुद के विवेक का। Within man himself, there is also an order based on working out self-love, the faculty of desire and reason, the faculty of judgment. So faculty of desire तो self-love है और faculty of judgment is reason. Right living depends upon two working in harmony, since neither is good or evil in itself. Rather, good or evil arises out of their proper or improper use. So जीवन में हार्मनी जरूरी है, क्योंकि गुड और इविल अपने आप में कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती हैं. इट इज अबाउट how they arise, whether they are arise or whether they are arising properly, और जो improper uses है, किसी भी नॉलेज का improper uses उसकी evil हो जाएगा. उसी चीज का proper uses है वो उसको quality में convert कर देगा. So that's why it's upon the uses of an idea or an object. Human society also partakes of this universal order. The imitation of nature and rational self-love enable men to create a successful social order. But this favoring of a particular government or religion instead of reliance on general principle creates dissensions and training. So human society also partakes of this universal order. मानव का जो संसार है उसमें भी ये order है. And the imitation of nature and rational self-love enable men to create a successful social order. अगर हम तार्किक रूप से और प्रकृति का अनुसरण करते हुए चलते हैं तो एक सक्सेसफुल सामाजिक संरचना का सृजन होता है. और अगर हम एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को, रिलीजन को या किसी विशेष आइडिया को एम्फसाइज करते हैं तो उससे समाज के अंदर विकृति आती है, विकृतियां आती हैं. रादर एक विकृति ही नहीं, बट इट कम्स इन प्लूरल. Next, man's end happiness is attained when he submits to providence and dispenses with pride. Part of the essay's greatness is Pope's unity of structure and theme. Structure और theme के अंदर एकता है और वो अलेक्जेंडर पोप की एक स्पेसिफिक क्वालिटी है. The poem's
orderly exposition of ideas, its concentration on universal rather than specifics, and its heroic couplet verses reflect the ideas of balance. So heroic couplet और वो सारी चीजें इस पोएम के अंदर जिस प्रकार से एक सुसंयोजित वे में इस्तेमाल की गई हैं, उससे आइडिया ऑफ बैलेंस, जो एक संतुलन का जो आइडिया है वो दिखता है. सबऑर्डिनेशन एंड हार्मनी बेटर देन इवन इन द फाइनेस्ट प्रोज. द पोएम इज अ प्रोजेक्ट ऑफ इंग्लिश एनलाइटनमेंट एज थ्रू इट द पोएट डिफाइंस द नेचर ऑफ मैन. सो ये पोएम इंग्लिश एनलाइटनमेंट का एक प्रोजेक्ट है, उसका एक हिस्सा है, क्योंकि इस कविता के माध्यम से द पोएट डिफाइंस द नेचर ऑफ मैन. पोएट क्या करता है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है उसको परिभाषित करता है. द पोएट कंप्राइजेज ऑफ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट थ्रू आउट. और पोएट क्या करता है, इस पोएम के अंदर जो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, एक निरंतर जो द्वंद्व बना हुआ है, उसको एक्सप्रेस करता है, उसको एक्सेंचुएट करता है. दिस कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में बी रेड एनालिगस टू मैन्स ओन एग्जिस्टेंस. और इस कांस्टेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मनुष्य का जो एग्जिस्टेंस है उसके समानांतर पढ़ा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. इट इज ऑल इन बाइनरीज from very existence on the basis of gender, male female. So वहीं से सारा का सारा जो बाइनरी ओपोजिशन है वो चलता है. और इस पोएम में पोएट ने बाइनरी ओपोजिशंस को भी बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है, और उन बाइनरी ओपोजिशंस की वजह से ऑक्सीमोरन की जो पोएटिक डिवाइसेस है उसका भी एक वंडरफुल प्ले वी ऑब्जर्व व्हेन वी रीड द पोएम. So after immediately after these major points, I'm going to take line by line description of the poem. The poet has made the immeasurably effective use of oxymoron in the phrase like darkly wise and rudely great. पहले स्टैंजा में ही और शायद दूसरे स्टैंजा में, पहले में ही है शायद, डार्कली वाइज, वाइज तो है बट डार्कली. सो वाइजनेस और डार्कनेस दोनों कॉन्फ्लिक्ट में है, कॉन्ट्राडिक्शन में है, and this makes the effective use of oxymoron. Rudely great, greatness doesn't teach you to be rude, rather it makes you polite, but opposite of it happens, that is rudely great. Man is great but he is rude at most of the times. So these are the major points, and now we take up the poem line by line. यहाँ से आपको कविता बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी. थोड़ा सा आप धैर्य के साथ में देखते रहिए. पर्टिकुलरली बीए सेकंड सेमेस्टर के, जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये पोएम ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ हरियाणा, क्योंकि उनके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है. नो देन thyself, presume not God to scan. So know then thyself. First of all, the word then is very important. यहाँ पे then का जो इस्तेमाल किया गया है, तो फिर या तब अपने, know then thyself, अपने आप, तो फिर तब अपने आप को जानिए. So then का मतलब ये हुआ that some unnarrated or untold narrative is there before the starting of this poem. इस पोएम के शुरू होने से पहले एक अनटोल्ड नैरेटिव है, अनसेड नैरेटिव है. वो अनसेड और अनटोल्ड नैरेटिव क्या है? द जनरल प्रैक्टिस बीइंग फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ अस दैट वी स्कैन गॉड, वी पुट गॉड ऑन स्क्रूटनी. भगवान है कि नहीं है, भगवान कहाँ मिलता है, भगवान कैसा है. सो वी आर ऑल स्पेकुलेटिंग अबाउट गॉड, एंड दैट इज नॉट आवर बिजनेस. Our business is to know ourselves. Know then thyself. So the usage of the word then is very interesting here. The proper study of mankind is man. Know then thyself, presume not God to scan. So don't scrutinize God. You know yourself. The proper study of mankind is man, placed on this isthmus of a middle state.
सो आदमी कहाँ पे प्लेस्ड है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मैन इन दिस यूनिवर्स? मैन इज प्लेस्ड ऑन द isthmus, अ मिडल स्टेट। वो isthmus जो मैंने आपको बताया था कि दो भूखंडों को जोड़ने वाली एक पतली सी पगडंडी जिसके दोनों तरफ पानी है। सो दैट इज मिडलिंग स्टेट। इंसान कहाँ पे प्लेस्ड है? एक मिडलिंग पोजीशन पे है, एज बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट। अगर वाइज है तो भी डार्कली वाइज है, उसकी वाइजनेस के सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं है। एंड सर्टेनली वन कैन से मैन इज डार्कली वाइज। सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिसाइल्स, scientists consider that these are the products of their wiseness, of their intellect, of their scientific temperament. But ultimately, what a missile does, it creates darkness. So the knowledge that was there in the mind of a scientist after spending several years in the lab, he creates something that is ultimately destructive. So it is not only the case of the missile, but all the weaponry, all the weapons, uh, and rudely great. People become educated. They know how to speak fluently in foreign languages, and they claim to have so many degrees and a vast experience. But at the end of the day, they end up behaving rudely with the people. So अब इंसान वाइज भी है, ग्रेट भी है, but he is rude with too much knowledge for the skeptic side. अब एक साइड में तो स्केप्टिक साइड है और उसमें उसको लगता है कि उसको भ्रम है कि उसके पास में बहुत ज्ञान है, एज इफ ही possesses द दिव्य ज्ञान, विद टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक प्राइड। और फिर वीकनेस भी है, दैट इज टू मच फॉर द स्टोइक प्राइड, जो एक प्राइड है कि मैं तो बड़ा दैव्य हूं, मैं तो साधु संत हूं। सो ऑल दीज आर faulty notions of most of us. I'm not talking about the exceptions, huh? I'm sorry, with the caveats. He hangs between in doubt to act or rest. इंसान कहाँ लटका हुआ है? It is hanging like a pendulum. He doesn't know whether he should rest or act. उसको नहीं पता कि वो काम करे या आराम करे। He hangs between in doubt to act or rest. In doubt to deem himself a god or a beast. और उसको ये भी संशय है कि वो अपने आप को भगवान समझे या अपने आप को दैत्य समझे, वो अपने आप को भगवान समझे या अपने आप को राक्षस समझे। So he doesn't know anything basically. Man is a product who is full of contradictions and conflicts, ironies. So this is the last PPT in terms of the discussion on the poem. Then there are two or maybe three more PPTs defining neoclassical age and the features of neoclassical age. So if the video or through this video, if I'm able to captivate your interest, maybe I'm giving you a purest, one of the finest dodges. So most of you may not like it as you are the product of this 2020 culture. आपको सब कुछ संक्षिप्त में चाहिए, बट जो लोग थॉरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स आप अटेन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के इस पोएम एनालिसिस के बाद का जो पार्ट है, जिसमें मैं आपसे नियो क्लासिकल एज और नियो क्लासिकल एज की जो फीचर्स हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूं, वो भी मैं चाहूंगा कि आप जरूर देखें। सो कमिंग बैक टू द पोएम, इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रीफर। वन मोर डाउट दैट ह्यूमन बीइंग्स सफर or doubt that human beings have is they don't know whether they should prefer their body or mind. उनको नहीं पता कि वो अपने माइंड को ज्यादा तवज्जो दें या अपनी बॉडी को ज्यादा तवज्जो दें। Born but to die, इंसान का जन्म तो हुआ है बट मरने के लिए हुआ है, another contradiction. And reason but to err, उसके पास में लॉजिक है, तार्किक वो है, बट उसकी तार्किकता, उसका लॉजिक अल्टीमेटली उससे गलती करवाता है। He has the reason, but he has the reason to commit an error. Alike in ignorance is reason such. So उसका कारण भी कैसा है? जैसा कि ignorance में आप अनअवेयरनेस में हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा उसका कारण है। Whether he thinks too little or too much. अब इस प्रकार की स्थिति को देखकर कि man is born but to die, he has reason to commit errors,
and he is in a doubt whether to prefer his body or mind, or I mean he is placed at an isthmus of the middling state. So उसकी इस मध्यम वर्गीय स्थिति को देखकर ये one wonders whether one should call man, उसको मतलब क्या कहे, whether he thinks too much or too little. इंसान को इतना सब उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस को देखते हुए इंसान को आखिर क्या कहा जाए? क्या ये कहा जाए कि वो बहुत ज्यादा सोचता है, या फिर ये कहा जाए that he thinks too little, कि बहुत कम सोचता है? chaos of thought and passion, उसके बाद में पैशन और थॉट का भी chaos है लाइफ में, all confused. और जो स्टेट बचती है, जो कंक्लूडिंग स्टेज पे इंसान जो आता है, जो स्टेज है और जो स्टेट है उसकी एग्जिस्टेंस की, वो है कंफ्यूजन की. स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड, और खुद को ही अब्यूज्ड एंड डिसअब्यूज्ड, क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल. इंसान का आधा उसको राइज करना है, आधा उसको गिरना है. ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स एंड येट प्रे टू ऑल, सभी चीजों का मालिक भी है और सभी चीजों का दास भी है. सपोज इलेक्ट्रिसिटी इज ह्यूमन इन्वेंशन, तो इसका मालिक हो गया, बट अगर करंट को, खुली वायर को हाथ लग जाए, सो इट कैन टेक योर लाइफ. सिमिलरली somebody driving a car at speed of 90 or 100, reaching out different places, having a cool temperature inside, all sort of things. So he feels that he's the master. But if that same person driving rashly or safely, and because of n number of reasons, unfortunately, if that person meets an accident and dies, so ultimately he became a prey to this technology. So that is the situation, that great lord of all things yet a prey to all. सभी चीजों का मालिक भी है, तो साथ ही साथ सभी चीजों का दास भी है. Soul judge of truth in endless error hurled. तो अब सच्चाई, we are so judgmental. सच क्या है, सही कौन है, गलत कौन है, we are so judgmental. हम जज करते रहते हैं. So soul judge of truth, सारी सच्चाई का जो न्यायाधीश है वो इंसान अपने आप को समझता है, और साथ ही साथ अनगिनत गलतियों में उसको धकेला जाता है, फेंका जाता है, या वो अपने आप को अनगिनत गलतियों के समंदर में अपने आप को फेंकता है. So this is a very precarious position of man, whether he should be labeled as thinking too much or too little. क्या कहा जाए इसको? The glory, jest and riddle of the world. So अब इंसान क्या है? In the last line, the poet defines who is, or I mean he defines man. और वो क्या कहता है? The glory, jest and riddle of the world. इंसान क्या है? इस संसार की ग्लोरी है, इस संसार की आन बान और शान है. एंड अ रिडल, एक पहेली है, और जेस्ट, मजाक भी है. सो ऑल ऑफ अस आर enigmatic. We are the glory of this world. We are the joke of this world. हम इस संसार का एक जोक भी हैं, जेस्ट भी हैं, सम्मान भी हैं, और एक पहेली भी हैं. So this has been the poem. I hope now the poem is very clear to you. And now I would be taking up 2 or 3 more slides on neoclassical age and its literary features. So neoclassical age basically इसके अंदर 3 ages हैं: the Restoration period, Augustan period, and the Age of Johnson. And neoclassical literature was written between 1660s and 1798. करीब 100 साल से ज्यादा नियोक्लासिकल पीरियड का कालखंड है. 1660 से 1798 तक जो साहित्य लिखा गया उसको नियोक्लासिकल लिटरेचर के नाम से पुकारा गया. और इसके 3 पार्ट हैं जो मैंने आपसे अभी शेयर किए. राइटर्स ऑफ द नियोक्लासिकल पीरियड ट्राई टू इमिटेट द स्टाइल ऑफ द रोमन्स एंड ग्रीक्स. इस एज के जो राइटर्स थे उन्होंने रोमन्स को और ग्रीक्स को फॉलो किया अपनी राइटिंग स्किल में. Thus, the combination of the term neo, which means new, and classical as the day of the Roman and the Greek.
सो वर्तमान में पुराने को इमिटेट करना, नए में पुराने को इमिटेट करना नियो क्लासिकल, इसलिए इसका ये नाम पड़ा नियो क्लासिकल. दिस वाज आल्सो द ईरा ऑफ द इंग्लिश इनलाइटनमेंट. सो ये जो पीरियड है इसको अंग्रेजी जागरण का समय भी कहते हैं, इनलाइटनमेंट का समय भी कहते हैं, विच एम्फेसाइज ऑन लॉजिक एंड रीजन, जिसने तर्क पर एम्फेसाइज किया. इट वाज प्रोसीडेड बाय द रेनेसेंस एंड फॉलोड बाय द रोमांटिक एरा. सो नियो क्लासिकल एज से पहले क्या है, रेनेसा है, और नियो क्लासिकल एज के बाद में रोमांटिक एज है. सो रेनेसा पीरियड, नियो क्लासिकल पीरियड एंड रोमांटिक पीरियड, दिस इज द trajectory in which the literary the classification of English literary ages is done. In fact, the neoclassical period ended in 1978, और 1978 में एक major significant चीज होती है, and that is the publication of Wordsworth's lyrical ballads. So 1798 में जैसे वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड्स पब्लिश होता है, रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है. सो न्यू क्लासिकल एज से पहले रेनेसां और न्यू क्लासिकल एज के बाद में रोमांटिक पीरियड. नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट characteristics of neoclassical literature. So in total I would be sharing up some 8-9 features, 3 on your screen through this slide. So neoclassical poetry sprung from intellect, not from writers' whims and imaginations. So neoclassical age है वो poets के intellect से निकलती है, ना कि उनकी fanciful imagination से. So romantic period में अब हम आगे देखेंगे कि जो poetry है that has an imaginative flight, तो उसके अंदर imagination है. neoclassical age के अंदर intellect है, logic है, whims and fancies नहीं है. It was a more moralizing, educational type of poetry as opposed to the romantic poetry of the Renaissance period. So ये poetry है, it is more moralizing, educated type of poetry. और रेनेसा के अंदर जो रोमांटिक पोइट्री लिखी गई थी उससे अलग है. रेनेसा में द मेजॉरिटी ऑफ द पोएट्स wrote on romantic themes, whereas in neoclassical age the poets they wrote on intellect and moralizing principles. Its main feature was rationalism, reason as the primary foundation and test of knowledge. So जो neoclassical age के अंदर जो पोइट्री लिखी गई उसकी मेन जो खासियत थी वो थी rationalism, logic, rationalism, intellect. These are the 3 words that would be very useful for you to define neoclassical literature. Neoclassical poets wrote poetry without calling on feelings and imagination to help them create their literary works. It has already been discussed कि उनका emotions पे focus नहीं था. Plato was a significant source of inspiration for the neoclassical era. Plato एक shaping influence है in poets पे. And this is the concluding slide. Neoclassical poets, having high regard for classical rules, tried to adhere to these classical rules of poetry in their writing. Classical poetry के जो rules थे उनसे वो stick करते हैं. The neoclassical movement as a whole, which included its poetry, stemmed from the classical and contemporary French model. जो model है जिसको इन्होंने imitate किया वो French model है. Neoclassical poetry and other works embodied a response against the hopeful, enthusiastic view of man typically to the Renaissance period. जो एक hopeful, enthusiastic man का जो perception था जो रेनेसा काल में चल रहा था उससे opposite response neoclassical literature में है to take to man. आप देखेंगे रेनेसा में जितने भी जो प्ले राइट्स हैं वो मैन की ग्लोरी को दिखा रहे हैं, whether it is through Dr. Faustus or Tamburlaine the Great. तो वहां पे मैन इज कमिंग एज हीरोइक, बट यहाँ पे उसकी अब देखिए इस पोएम के माध्यम से भी क्या दिखाया गया, that man is the glory, jest and riddle of the world. So critical scrutiny on the idea of man is being done. Poets of the neoclassical era, many who were well educated, made use of scholarly illusions in their works.
पढ़े लिखे होने के नाते और जो सारा न्यू क्लासिकल का फोकस इंटेलेक्ट पे था, तो लिटरेरी इल्यूजन्स का भी, स्कॉलरली इल्यूजन्स का भी इस्तेमाल किया। और इल्यूजन का मतलब होता है कि एक पीस ऑफ राइटिंग में आप किसी दूसरी चीज का, किसी ज्योग्राफिकल लैंडमार्क का, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का आप रेफरेंस देते हैं, दैट इज allusion. For example, the most quoted example of an illusion is the word Santi, Santi, Santi in T.S. Eliot's poem The Wasteland. Then these often they often made allusions to the classical writers such as Homer. So Homer का भी काफी बार वो रेफरेंस देते हैं. Being realistic to a great degree, neoclassical poets endeavored to present what they believed was a true, real picture of the society in which they lived. So ये वास्तविकता से ताल्लुक रखते थे, और नियोक्लासिकल पोएट्स ने कोशिश की कि जिस प्रकार की जो रियल लाइफ की सोसाइटी, जो रियल पिक्चर थी सोसाइटी की, समाज की जो वास्तविक स्थिति थी, उसको उसमें उन्होंने यकीन किया और उसी को अपने लिटरेचर में एक्सप्रेस किया. दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू रोमांटिसाइज्ड व्यू ऑफ सोसाइटी अराउंड देम. सो इससे पहले और इसके बाद में जो रोमांटिसाइज्ड व्यू है, अ रोजी परसेप्शन ऑफ लाइफ लिटरेचर में जो हमें देखने को मिलता है, वो नियो क्लासिकल पीरियड में नहीं है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस long but meaningful video on neoclassical literature, neoclassical age, features of neoclassical literature, and of course, Know Then Thyself by Alexander Pope. If you are new on this channel, kindly do subscribe this channel, क्योंकि आपकी जो poems हैं, particularly BA third semester in all the universities of Haryana, आपकी सारी poems tag के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी. So it's a complete course for you, particularly the students of BA third semester studying in various universities of Haryana. And if you like it, kindly do share it with your friends and promote TAC. That is one of the best platforms, best online platforms for learning literature and language, along with taking ideas from the newspaper, that is The Hindu. द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस, वोकेबुलरी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म टैग बन पाए, इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है. मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. जो कंटेंट आपको दिया गया है, दैट इज द बेस्ट, एंड आई एम श्योर दैट यू वुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस कंटेंट, एंड एट द सेम टाइम you would promote this channel. Thank you so much for watching. Like, share, subscribe, and please don't forget to press the bell icon. Thank you.